Good morning, students. As we have already started our classes, and in my previous classes, I have already given you some notes, points, hints, and on video. Now I am again showing you some lectures on Cold War era. Again, I am repeating my some points. Before going to Cold War era, first of all, we must go with how the Cold War started. Actually, the Second World War was fought between two groups, Allied powers and Axis power. The Second World War was fought in 1939 to 1945, led by two groups. And in this group, Allied powers were leading by US, USSR, UK, and Axis powers was leading by Italy, Germany, Japan. At that time, the whole Europe was divided into two groups. Anyhow, the war ended when US dropped two atom bombs, Little Boy and Fat Man, upon Japanese cities Hiroshima and Nagasaki in 1945. This is the story of little bit of Second World War. After the Second World War ended, there emerged two superpowers in the world scenario, that is US and USSR. They were victorious in the Second World War and highly powerful. They both went through stabilizing their economy, rebuilding their country, and while going in the process, they have adopted two ideologies. US leading by the ideology of capitalism. Capitalism means private ownership. And USSR going through communism policy. Communism means private governmental undertaking. And both became each other's rival, opposed to each other from that time, as both the ideology were against each others and they were not liking by each other. And that led to the beginning of Cold War that lasted for 45 years. Now, what is Cold War? Cold War is an ideological war which is fought in a diplomatic way between two superpowers, US, USSR. The term was coined by Bernard Baruch. Actually, Cold War means where a person does not go front to front and fight the war. It is not like a hot war. Hot war means where two parties, they fight face to face with weapons. In Cold War, they go diplomatically, they go ideologically without going face to face, indirectly. So this is how the story of Cold War began in European country led by two superpowers, US and USSR. Acha. After that, we can go to the causes of how does this I have already given you. Again, I am showing you these things. How did the Cold War started? Causes mainly. अगर आप देखोगे तो कोल्ड वार का जो मेन रीजन है वो बहुत सारा है, मुद्दा है बहुत सारा है. एक्चुअली फर्स्ट वन इज आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, जो मैंने आगे ही बोला. कैपिटलिज्म फॉलोड बाय यूएस, कम्युनिज्म फॉलोड बाय यूएसएसआर, और ये दोनों कंट्री के अगेंस्ट में थे और इसलिए आइडियोलॉजीज का दोनों आइडियोलॉजी पसंद नहीं आ रहा था. नेक्स्ट है म्यूचुअल सस्पिशन. ड्यूरिंग कोल्ड वार पीरियड म्यूचुअल सस्पिशन, वो दोनों अपने अपने कंट्री, उनके एलिस के साथ फ्रेंडली दूसरे कंट्री के साथ जब ग्रुपिंग बनाया उन लोगों ने, तब दे बिकेम सस्पिशियस. दोनों एक दूसरे के ऊपर सस्पेक्ट करने लगे उन्होंने, और इसको और बढ़ावा देते बहुत दिनों तक बढ़ावा देने लगे इस सस्पिशंस को, और ये बहुत कम करने लगा द कॉजेस ऑफ कोल्ड वार. नेक्स्ट आता है ट्रूमैन डॉक्ट्राइन. यूएस प्रेसिडेंट ट्रूमैन, उन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट किया था उस टाइम में. उस पॉलिसी का नाम था ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, उनके नाम पर. उस पॉलिसी का मतलब था टू कंटेन कम्युनिज्म. मतलब ये लोग उन कंट्री में उन लोगों ने हेल्प करना शुरू किया, फाइनेंशियल सपोर्ट करना शुरू किया, कंट्रोल करना शुरू किया जिन कंट्री
कंट्री ने कम्युनिज्म को छोड़ के उन्होंने कैपिटलिज्म पॉलिसी एडॉप्ट किया, मतलब इन लोगों ने फाइनेंस किया स्मॉल 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 कंट्रीज़ को, और इनके विनिमय उन लोगों को दूसरे क्या मिला, मतलब कैपिटलिज्म पॉलिसी एडॉप्ट करने को मिला. सो दे बिकेम बेनिफिटेड विद दिस थिंग्स. कंटेनिंग मतलब काटिंग ऑफ कम्युनिज्म पॉलिसी और एडॉप्टिंग कैपिटलिज्म पॉलिसी. नेक्स्ट आता है मार्शल प्लान. मार्शल प्लान यूएस सेक्रेटरी जॉर्ज मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया था. मार्शल प्लान ये भी सेम ही है, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन की तरह ही है. ये भी सेम है कि टू कंटेन कम्युनिज्म और टू हेल्प दोज कंट्रीज जिन लोगों को फाइनेंस चाहिए होगा तो फाइनेंस देंगे उन लोग, और इसके बदले में उनको क्या चाहिए, कैपिटलिज्म पॉलिसी अडॉप्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री अलायंसेस. उस दौरान कोल्ड वॉर के दौरान उन लोगों ने बहुत सारे कंट्रीज ने क्या किया, उन लोगों ने सुपर पावर के साथ एलिस बनाना शुरू किया. सुपर पावर्स को खुद ही उनको अलायंस चाहिए था, तो क्योंकि वो लोग अकेले दे वर नॉट सेफ, तो उनको बहुत सारा और भी फ्रेंड्स चाहिए था जो जिनके साथ वो मतलब अपने आप को उनके साथ वो लोग जा सके और दे कैन मेक फ्रेंड्स और ज़रा स्ट्रांग हो सकेंगे. तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, अलायंस किया. अलायंस का मतलब होता है फ्रेंड्स को ढूंढना, फ्रेंडली कंट्री को ढूंढना. तो उन्होंने जैसे कि यूएस मेड मिलिट्री अलायंसेस, जैसे नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन 1949. नेटो का और एक नाम है वेस्टर्न अलायंस, क्योंकि यूएस के जो बहुत सारे मित्र कंट्री है वो वेस्ट के तरफ गिरता है, इसलिए वेस्टर्न अलायंस. और एक था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इन 1955. और यूएसएसआर ने बनाया एक बहुत सा तगड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था वार्सो पैक्ट. उसका क्योंकि यूएसएसआर ईस्ट की तरफ गिरता है, इसके लिए इसका नाम हुआ ईस्टर्न अलायंस. All these alliances were made to counter against each other's ideologies. मतलब वेस्टर्न ब्लॉक led by US, ईस्टर्न ब्लॉक led by USSR.